Good day students, welcome to lecture number 15 of the chapter share capital। हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंस शीट। कंपनीज बैलेंस शीट कैसे बनाती है वो हम कर चुके हैं या कर लेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि कंपनी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करती है। सो शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी, प्रेफरेंस, फोरफीचर, कॉल्स इन अरियर, री इशू, इसको कंपनी किस तरीके से डिस्क्लोज करती है वो टॉपिक हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, Poonam Limited has an authorized capital of ₹30 lakh divided into equity share of 20 each. So 30 lakh is the total। अगर आप 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 15,000 और 1,50,000। The company invited applications for issuing of 70,000 shares। कंपनी सारे शेयर इशू नहीं करना चाहती, कम शेयर्स इशू करना चाहती है। Applications for 67,000 shares were received. It is a case of under subscription. All calls were made and duly received, except a final call on 8 per share on 4,000 shares। 4,000 शेयर्स पर 8 रुपए नहीं आए। These shares were forfeited। ये शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। कॉल्स इन अरियर नहीं आएगा, सिर्फ फोरफीचर आएगा। Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 13. Also prepare notes to account for the same। Let's proceed making the format for balance sheet। Balance sheet of Poonam Limited। Disclosure, not full-fledged, we'll just make the disclosure। Particulars, note number, amount in rupees। First we have is equity and liabilities। Under that we have shareholder funds। Under that we have a share capital। We do not have any security premium reserve, nor we do have capital reserve। Capital reserve तब आएगा जब shares reissue किए जाएंगे। So we'll just have share capital, note number 1। Now we are making note number 1, share capital। First of all, we'll show authorized capital। Authorized capital refers to the capital the company which is authorized to issue, registered capital, nominal capital, which is 1,50,000 equity shares of ₹20 each, 30 lakh। Double line means this amount will not add up in share capital। And the second would be issued capital। The company invited applications for 70,000 shares। 70,000 equity shares of ₹20 each, that would be 14 lakh। Again double line, that means it is only for the disclosure purpose। Then we have is subscribed capital,
Now we have to see whether it is fully paid up or not fully paid up. All calls were made. सारे पैसे मंगवाए जा चुके हैं. 4000 शेयर पर पैसे नहीं आए क्योंकि सारे पैसे मंगवाए जा चुके हैं, तो वो बनेगी fully paid up. Fully paid up. 67,000 में से 4,000 ने पैसे नहीं दिए. 67,000 आएगा टोटल. सब्सक्राइब कैपिटल है 67,000, उसमें से 4,000 ने पैसे नहीं दिए, तो 67 में से 4 माइनस किया तो वी आर लेफ्ट विद 63,000. 63,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, क्योंकि सभी पैसे मंगवाए जा चुके हैं. दैट वुड बी 12,60,000. Add share forfeiture 4,000 shares into जितने पैसे पे कर दिए. 20 में से 8 नहीं पे किए, 20 का शेयर 8 नहीं पे किए, तो 12 पे किए. 4,000 into 12, 48,000. अगर ये शेयर्स फोरफिट ना होते, अगर ये शेयर्स फोरफिट ना होते तो मैं एक नई हेडिंग बनाता नॉट फुली पेड अप. अगर ये शेयर्स फोरफिट ना होते तो मैं एक नया हेडिंग बनाता नॉट फुली पेड अप, जिसमें हम करते 4,000 into 20 माइनस कॉल्स इन अरियर 4,000 into 8. 4,000 into 20 माइनस कॉल्स इन अरियर 4,000 into 8. फिर मैं आउटर कॉलम में 48,000 ही डालता. ना इसका टोटल किया जाएगा 13,08,000. And this 13,08,000 will post here 13,08,000. This is what all about question number 76. Present the share capital in the balance sheet as per schedule 3 of the Companies Act 13. Also prepare the notes to account for the same. Giving you a minute, complete it. So, moving on, question number 75. Question 75. Sun Pharma Limited is registered with an authorized capital of ₹1 zeros, 1 crore, divided into 1 lakh shares of 100 each. हमारी कंपनी ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है. एक शेयर 100 रुपए का है, लाख शेयर्स इशू किए गए. द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 40 per share. कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर इशू किए हैं, वो भी 40 प्रीमियम पे. 2 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ 20 per share. 2 शेयर होल्डर्स या 3 शेयर होल्डर्स जिनके पास 500 शेयर है, उन्होंने फाइनल कॉल नहीं पे की. 300 शेयर्स वर फोरफिटेड. 500 में से 300 फोरफिट हुए हैं, 200 फोरफिट नहीं हुए. सो 300 विल बी शेयर फॉरफीचर लाइक दिस है. 300 यहां पे आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में और 200 नीचे चला जाएगा कॉल्स इन अरियर में. प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. आल्सो प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट. हम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व नहीं क्योंकि रीइश्यू नहीं हुआ. हम इसमें एसपीआर का कंसेप्ट भी शो करेंगे. लेट्स प्रोसीड. मेक द फॉर्मेट. क्वेश्चन 75.
बैलेंस शीट ऑफ सन फार्मा लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सन फार्मा लिमिटेड, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं डिस्क्लोजर एक्सट्रैक्ट। पूरी बैलेंस शीट नहीं, हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटीज एंड कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स, ए शेयर कैपिटल, बी reserves and surplus. Note number 2. Speed up. Speed up. Okay, after making the format for balance sheet, move to notes to account. Note number 1, share capital. सबसे पहले हमें चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, 1 CR. Out of these 1 lakh shares and double line, how many shares are issued? We have issued 50,000 shares at a premium. Premium का कुछ नहीं करेंगे, premium को बाद में देखेंगे। 50,000 equity shares of ₹100 each. That amounts to 50 lakh. Now subscribed capital, 2 headings, fully paid up, not fully paid up. According to question, फाइनल कॉल नहीं पे की 2 शेयर होल्डर्स ने या 3 शेयर होल्डर्स ने, मतलब कंपनी फाइनल कॉल मंगवा चुकी है, मतलब जिन्होंने सारे पैसे दे दिए वो इस कैटेगरी में आएंगे। कितने शेयर्स डिमांड किए? 50, मेंशन कुछ नहीं है तो विल कंसीडर फुल सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में गिवन नहीं है पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, तो विल कंसीडर द फुल सब्सक्रिप्शन। We have considered full subscription. No over subscription, no under subscription. So 50,000 में से 500 ने पैसे नहीं दिए, 50,000 में से 500 ने पैसे नहीं दिए, तो कितनों ने पैसे पूरे दे दिए? 49,500. 49,500 equity shares of ₹100 each, 495,000, 49,50,000. Add share forfeiture. कितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं? 500 में से 300 फॉरफिट हुए, 200 फॉरफिट नहीं हुए, जो 300 फॉरफिट हुए। 300 इंटू, उन्होंने 20 की कॉल नहीं पे की, 100 में से 20 नहीं दिए तो 80 दे दिए, दैट वुड बी 24,000। एंड नाउ नॉट फुली पेड अप। $500 ने नहीं पैसे दिए थे, 300 के फॉरफिट किए, 200 फॉरफिट नहीं किए, सो दैट वुड बी 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. That would be minus calls in arrear. शो इसको भी 80 पे ही करेंगे, 200 इंटू 80, 200 इंटू 80, बट क्योंकि शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए इसीलिए हमें कॉल्स इन अरियर शो करना है। क्योंकि हमें कॉल्स इन अरियर शो करना है तो इस वजह से उसको ऐसे शो करेंगे। 100 मंगवाए, 20 नहीं पे किए, सौ में से 20 नहीं पे किए, सो बाकी बच गया 16,000।
अगर ये शेयर्स रीइश्यू के बाद फोरफिट के बाद रीइश्यू हो जाते हैं तो फिर हम अलग वे से शो करते हैं, फिर वो फोर फीचर में ना आता। $49,90,000, 49,90,000. This we will show here, 49,90,000. Perfect. Note number 2 here. Note number 2, reserves and surplus. हमारे पास सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, नो कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हाउ मेनी शेयर्स? टोटल 50,000, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं पे की, मतलब एसपीआर सबने पे किया है, क्योंकि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं पे की, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सभी ने पे किया है। So 50,000 share, 50,000 into ₹40 per share। अगर किसी ने एसपीआर ना पे किया होता और वो फोरफिट होते तो माइनस कर देते। इस क्वेश्चन के अंदर 40 रुपए का प्रीमियम है सभी शेयर्स के हिसाब से, 20 लाख। Total 20 lakhs. This 20 lakhs will show here. $50,00,000 के शेयर्स थे, 50,000 into 100, उसमें से 1,000 रुपए नहीं आए, दैट मीन्स 49,90,000, और 40 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम था। That's it. Take your time, 1 minute, and we are done with the question. So moving on, question number 73. A Limited was registered with an authorized capital of ₹10 lakh divided into equity share of ₹10 each. 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड बन गई। The company invited application for the issue of 50,000 shares. Applications for 48,000 shares were received. तो सब्सक्राइब में 48 आएगा। All calls were made and duly received except final call of 2 per share on 1,000 shares. तो ये बना कॉल्स इन अरियर। 48 में से 1 नहीं है, 47 आ गए, तो ये बन गया कॉल्स इन अरियर। All shares were forfeited. अब ये कॉल्स इन अरियर खत्म, शेयर फोर फीचर में बन गया, एंड लेटर ऑन रीइश्यूड, और ये शेयर्स रीइश्यू हो गए। शो द फॉलोइंग, शेयर कैपिटल विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज पर दिस, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। That means we have to show the capital reserve also. Now make the format. I am making myself, and you are supposed to make yourself. The account, share capital, shareholder funds, reserves and surplus, and notes to account. Speed up. शुरू कीजिए। स्पीड अप, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाइए।
Right. Let's proceed. A Limited was registered with an authorized capital of rupee 10 lakh divided into equity share of rupee 10 each. So 1 lakh equity shares of rupee 10 each. 10 lakh. The company invited applications for the issue of 50,000 shares. 50,000 equity shares of rupee 10 each. That would be 5 lakh. Application for 48,000 shares were received except final call of 2 per share. That means fully paid up. सब्सक्राइब पे 48 आएगा. मैं आपको इसमें 3 केसेस समझा रहा हूं. पहला 48 में 1000 रुपए ने 1000 शेयर पर 2 रुपए नहीं आए. 48 में 1000 पर 2 रुपए नहीं आए तो ऐसे शो करेंगे. अभी सिर्फ समझेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे. 47,000 शेयर्स ऑफ रुपी 10 each, not fully paid up. 1,000 shares of rupee 10 each, 10,000 minus calls in arrear, 1,000 into 2, 2,000 left with 8. ये रहेगा. Got it? This is what you are supposed to do. अगर इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर पर बैलेंस शीट बन रही होती, शेयर्स फोरफिट ना किए होते, 48 टोटल हो गया, 47 ने पूरे पैसे दिए, 1 ने पैसे नहीं दिए, बट कंपनी एक स्टेप आगे चली गई. कंपनी ने कॉल्स इन अरियर के बाद शेयर्स फोरफिट कर लिए. ऐड शेयर फॉरफीचर. How much? 1,000 into 8. 8,000. मतलब कॉल्स इन अरियर के बाद कंपनी 4 फीचर तक पहुंच चुकी है यहां पर. बट अब कंपनी इससे एक स्टेप आगे और चलेगी. कंपनी ने शेयर्स कर दिए री इशू. ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन री इशूड. क्योंकि री इशू कर दिए तो वो शेयर दोबारा पब्लिक के पास ही पहुंच गए हैं. तो हियर विल राइट 48. 47 पहले, 1,000 अब. ये 1,000 कौन से हैं? डिफॉल्टर के कॉल्स इन अरियर. पर कॉल्स इन अरियर क्लोज हो गया, 4 फीचर क्लोज हो गया, री इशू. अब आप सोचेंगे री इशू तो 9,000 पे हुए हैं, फुली पेड अप. नहीं, वो 9,000 का जो डिस्काउंट है वो कैपिटल रिजर्व पे इंपैक्ट डालेगा, जो मैं अभी करने जा रहा हूं. सो ये शेयर्स अगर ज्यादा के इशू किए जाते तो एसपीआर आ जाता, कम पे किए जाएंगे तो कैपिटल रिजर्व कम आ जाएगा. तो बेसिकली यहां पर तो फेस वैल्यू 10 ही आएगी, क्योंकि जब हम री इशू की जर्नल एंट्री डालते हैं तो शेयर कैपिटल में 10 आता है. बैंक टू शेयर कैपिटल 10, बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर शेयर कैपिटल में 10, बैंक 4 फीचर टू शेयर कैपिटल में 10. यहां पे 10 नहीं आएगा. कम में इशू करो, ज्यादा में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हियर विल राइट 4,80,000. नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, तो विल जस्ट राइट कैपिटल रिजर्व. हाउ मच कैपिटल रिजर्व विल मेक द अकाउंट. अकाउंट स्टैंड्स फॉर जर्नल एंट्री, ताकि हमें कैपिटल रिजर्व पता लग जाए. पहले शेयर्स फॉरफिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर. कितनों ने पैसे नहीं दिए थे? 1,000 ने 2 रुपीज नहीं दिए थे, तो 1,000 इंटू 10. 2 रुपीज नहीं पे किए थे, 1,000 इंटू 2,
10 में से 2 नहीं पे किए तो 8 पे कर दिए, 1000 इंटू 8, ये होगी फोर फीचर की एंट्री। तभी हम कॉल्स इन अरियर की जगह फोर फीचर डालते हैं। अभी ये शेयर इशू किए गए, बैंक शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9000 पे। तो 10,000 के शेयर 9,000 पे इशू किए, 1,000 का लॉस। 10,000 के शेयर 9,000 पे इशू किए, 1,000 का लॉस। और ये प्रॉफिट लॉस जो है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। शेयर फोर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फोर फीचर डेबिट 7,000। शेयर फोर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फोर फीचर डेबिट। इसका शॉर्टकट भी था, 10 में से 2 नहीं पे किए तो 8 पे किए, 8 का फायदा। 10 में से 2 नहीं पे किए, 8 पे किए, 8 का फायदा। 1 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया, 1 का लॉस। 8 में से 1 गया, रह गया 7, 7 का नेट प्रॉफिट। 8 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, नेट प्रॉफिट 7 का, 1000 शेयर, 1000 इंटू 7, 7000 कैपिटल रिजर्व। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो जर्नल एंट्रीज आपके सामने है। दिस कैपिटल रिजर्व एंड दिस टोटल 4,80,000। हाँ, अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते तो एसपीआर भी आ जाता। ये अमाउंट अब जाएगी इधर शेयर कैपिटल में 4,80,000 और कैपिटल रिजर्व में 7,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला हाउ शेयर कैपिटल इशू, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, ये नहीं, बट हम ये भी बना रहे हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है हाउ शेयर कैपिटल विल बी शोन इन बैलेंस शीट, बट आई हैव शोन द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस along with. Take 1 minute, speed up the full question. Let's move to question number 71. On 1st April 17, Vishwas Limited was formed with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each. 10 lakh is the authorized capital. The company issued prospectus inviting applications for 90,000 equity shares. 1 लाख में से 90,000 शेयर हमने इशू किए। The company received application for 85,000 equity shares during the first year. 8 per share were called. कंपनी सिर्फ 8 रुपए ही मंगवा चुकी है, 2 रुपए अभी पेंडिंग है। राम होल्डिंग 1000 and Shyam holding 2000 shares did not pay the final call 2 per share. 1000 और 2000 टोटल 3000 शेयर पर पैसे नहीं आए। 2 रुपए फाइनल कॉल, नो फर्स्ट कॉल, मतलब अभी फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई ही नहीं है। 8 रुपए मंगवाए हैं अभी तक। Shyam share were forfeited after the first call and later on 1500 shares were reissued at 9 per share, 8 called up. So अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में सब कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। 3000 पर पैसे नहीं आए, 2000 फोरफिट हुए तो 1000 फोरफिट नहीं हुए, और 2000 में से 1500 रीइश्यू है तो 500 अभी भी फोरफिटेड है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। टोटल 3000 पर पैसे नहीं आए जिसमें से शाम के फोरफिट हुए। So Ram is calls in arrear, और 2000 में से 1500 is capital reserve and 500 is forfeited. So share capital in the balance sheet as per the revised schedule 3 and notes to account, but हम इसमें reserves and surplus भी show करेंगे। 71 balance sheet of
बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ विश्वास लिमिटेड particulars, note number, amount. First, equity and liabilities. Under that we have shareholder funds, A, शेयर कैपिटल फर्स्ट, बी, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट स्टिल वी आर मेकिंग दैट नोट नंबर 2. नॉर्मली दे डोंट आस्क दैट. नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल. फर्स्ट वी हैव इज authorized, registered or nominal capital. 10 lakh shares, 1 lakh shares of 10 each. 1 lakh equity shares of rupee 10 each. 10 lakh. Next we have is issued capital. The company issued prospectus inviting application of 90,000 equity shares. 90,000 equity shares of rupee 10 each. 9 lakh. कुछ नहीं गिवन तो फुल सब्सक्रिप्शन होगी 90,000, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था. कम होगी तो कम शेयर से कंसिडर करेंगे, ज्यादा होगी तो 90 से करेंगे, क्योंकि जब ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं हम इशू तो 90 करते हैं ना, या प्रोराटा देते हैं या रिजेक्शन करते हैं. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगी तो 90,000 ही सब्सक्राइब कैपिटल में आएगा. नाउ वी हैव ए सब्सक्राइब कैपिटल. $8 per share कॉल्ड अप. अभी तक कंपनी ने पूरे पैसे मंगवाए ही नहीं, तो फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा. नॉट फुली पेड अप रहेगा, सिर्फ नॉट फुली पेड अप. 85,000 में से 3,000 में पैसे नहीं आए तो 82 पे पैसे आ गए. 85 में से 3 में पैसे नहीं आए तो 82 में पैसे आ गए, तो यहां पे आएगा 82. समझिए, उसमें से शाम के फोरफिट हो गए तो 1,000 आएगा कॉल्स इन अरियर में. 2,000 में से 1,500 रीइश्यू हो गए तो 500 आएगा फोर फीचर में. तो यहां पे आ जाएगा 82,000 प्लस 1,500, 83,500. कैसे? 82 वो जो टोटल आ गए, 83,500 में से 82 वो जो पूरे पैसे आए हैं पहले से ही राम शाम को छोड़ के, प्लस 1,500 वो जो रीइश्यू कर दिए. गॉट इट? 82,000 प्लस 1,500 जैसा रीइश्यू किया था हमने वो चीज. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच, 8 कॉल्ड अप. जो रीइश्यू है वो 8 पर ही है, चेक कर सकते हैं कि ₹2 अभी फाइनल कॉल सबसे मंगवाएंगे तो इनसे भी मंगवाएंगे 1,500 से. सो 82,000 राम शाम को छोड़ के प्लस 4 रीइश्यू 1,500. 82,000 राम शाम को छोड़ के और 1,500 रीइश्यू इंटू 8, 6,68,000, 6,68,000. Had share forfeiture. कितने शेयर्स फॉरफिटेड हैं? 2,000 में से 1,500 रीइश्यू हो गए तो रह गए 500. 2,000 में से 15 रीइश्यू हो गए, रह गए तो 500. 500 में कितना? दे हैव नॉट पेड 2 पर शेयर, ₹2 नहीं पे किए. 8 में से 2 नहीं पे किए तो 6 पे किए.
10 में से 8 मंगवाए, 8 में से 2 नहीं पे किए तो 6 पे किए, 500 इंटू 6 3000। अब कॉल्स इन अरियर मैं अलग शो कर रहा हूं, 1000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, 8 called up, that means 8000 minus calls in arrear 1000 into 2 2000। करना ये भी 6 से मल्टीप्लाई है, यहां फोर फीचर में सीधा 6 शो करेंगे, कॉल्स इन अरियर में 8 माइनस 2 करके शो करेंगे। ये जो 1000 है ये आप ऊपर भी शो कर सकते हैं, फिर सीधा कॉल्स इन अरियर। आई जस्ट मेक द कॉम्प्लेक्स थिंग्स इजी, दैट्स इट, चाहे लेंथी हो जाए। 677,000, 668,000 प्लस 3000 प्लस 6000, 6,77,000, राइट। नाउ नोट नंबर 2 जो इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड वी हैव कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व सीधा पता लग जाएगा कितना आ रहा है, 6 पे किए, 6 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि कोई लॉस नहीं है रेशियो पे। बट ये चीज समझनी थोड़ी टेक्निकल होती है, इसलिए हम जर्नल एंट्री डाल देते हैं, साथ में प्रैक्टिस हो जाती है 4 फीचर एंड रेशियो की। पहले 4 फीचर की एंट्री डालते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 2, कॉल्स इन अरियर 2, शेयर 4 फीचर। How many shares are forfeited? 2000 into 8, 2 रुपए नहीं पे किए, 6 रुपए पे कर दिए, 8 में से 2 नहीं। ये किसके शेयर्स फॉरफिट किए हमने? शाम के, आई गेस शाम, यस शाम के 2000 शेयर फॉरफिट किए। अब 1500 रीइश्यू किए, बैंक 2 equity share capital 2 SPR security premium reserve 1500 into 8, 9 per share पे इशू किए, 1500 into 9, 8 का शेयर 9 में, ये 8 कॉल्ड अप, 8 का शेयर 9 में, तो 1 रुपया हो गया SPR। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया 1500, क्योंकि पहले ये शेयर्स पार पे इशू हुए थे, ये शेयर्स पार पे इशू हुए थे, री इशू प्रीमियम पे हुए हैं, तो ये प्रीमियम वाला आ गया जो शेयर इशू है। एंड द लास्ट एंट्री वुड बी शेयर फॉर फीचर 2 कैपिटल रिजर्व, share forfeiture credit for 2000 shares, what about 1500 shares, minus share forfeiture debit, share forfeiture credit minus share forfeiture debit। क्योंकि partial reissue है तो unitary method लगेगा, 6000 divided by 2000 multiplied by 1500, 4500 minus 0 is 4500। मैं बना रहा हूं शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वैसे जरूरत नहीं है बनाने की, बट मुझे एक चीज एक्सप्लेन करनी है, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दैट। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। शेयर फॉर फीचर डेबिट है टू capital reserve to balance carried down 1500।
ये जो 4 फीचर आया क्रेडिट साइड, ये 4 फीचर यहां पे आया। दिस प्लस द अदर शेयर्स, 6 रुपीज इन्होंने पे किए थे, दैट वन। क्लियर एवरीवन? टेक 1 मिनट, स्पीड अप, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। Thirty more seconds, students. Speed up. Okay, this forfeiture is 12,000. You must have noticed that share forfeiture is 12,000. In that case, we'll get here 12,000. 12,000 divided by 2,000 into 1,500 is 9,000. So the capital reserve is 9,000. And accordingly, the account will be made like this. Basically, my point is मैंने ये अकाउंट क्यों बनवाया है, ये चीज वेरीफाई करने के लिए। देखिए शेयर फॉरफीचर में कितना कैरी डाउन है, 3000। शेयर फॉरफीचर में 3000 कैरी डाउन है, तो बैलेंस शीट में भी 3000 ही आएगा जो आया है। पहले 1500 आया था, दैट वाज आई रेक्टिफाई दैट। दिस अमाउंट वुड बी हियर 2000 into 6 is 12,000. I hope you're clear with this. क्वेश्चन नंबर 69 आप अपने आप करेंगे। Vishwa Vino Limited was registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. The company offered 80,000 share subscription to the public, out of which 75 were subscribed. All amounts were received except the final call of 2 on 3,000 shares. There is a case of calls in arrear only. So 69 question you will be doing yourself. The answer will be given along with this lecture. That's it. This completes our balance sheet. अब बेसिक रेक्टिफिकेशन एंट्री जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पर 2000 to 6 12,000 आएगा, जिस वजह से कैपिटल रिजर्व चेंज होगा। कैपिटल रिजर्व विल कम 9,000, टोटल 10,500. Got it? Only for this rectification, and this will post it here. Reserves and surplus. The total of reserves and surplus, will put it in the note number 2. This completes our lecture 15 and the topic balance sheet, the disclosure. Bye bye, take care, God bless.